Today we will discuss about a sample question paper of social science class 10th. It is total 80 marks question paper and it is given by CBSE as a sample paper. First of all, we will complete our MCQs. Question 1. What helped in the colonization of Asia and Africa countries? Identify the correct statement for the following opinion. अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को कॉलोनाइजेशन करने में कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने हेल्प किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक ने कौन से क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट किया? Its right answer is option B, Kesari. Question number third. Look at the picture given below. Identify the name of the painter of this painting from the following opinion. ये एक पेंटिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. In this question they are asking about the painter of this painting. This painting is related to Raja Ravi Verma. So option C is right answer. Question number 4. Arrange the following in chronological order. मीन्स ये जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें पहले जो हुआ, पहले जिस चीज़ की डेवलपमेंट हुई उसको, और बाद में जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में उसको लगाना है. सबसे पहले जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस उसको इन्वेंशन किया. फोर्थ, फिर मार्टिन लूथर्स राइटिंग लीड टू बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ये सेकेंड इवेंट था. फिर हमारा थर्ड, मिनूची री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल. एंड फोर्थ जो इसमें राइट आंसर में हमारा आएगा वो है ऑप्शन 1, प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो इसमें ऑप्शंस में से जो डी है वो हमारा राइट आंसर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए. नेक्स्ट पे आते हैं. आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. किसी क्रॉप को उगाने के लिए किन किन कंडीशंस की ज़रूरत है वो उन्होंने दिए हैं यहाँ पर, और पूछा है कि कौन सी जो क्रॉप है इससे रिलेटेड कंडीशंस हैं. इट इज़ अ क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर. इट इज़ अ खरीफ क्रॉप which requires temperature between 21 degree Celsius to 27 degree Celsius. It grows well in old alluvial soil. Use of modern inputs have contributed to the increasing production of this crop. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट? कि इनमें से 4 टाइप ऑफ फॉरेस्ट दिखा रखे हैं और उन्होंने पूछा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट जो कंडीशन है वो है इसकी. तो फर्स्ट, रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट ही राइट है. सेकंड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट, दिस इज ऑल्सो राइट. अनक्लेस्ड फॉरेस्ट रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, दिस इज ऑल्सो राइट. बट द ऑप्शन नंबर डी, permanent forest reserve and enclosed forest for the protection of timber, this is the right answer or right option of this answer. So D is the right option. Match the following. In next question we have match the following. Renewable resources. Renewable resources are forests and wildlife. Non-renewable resources are minerals and forests, fossil fuels. Once they are used up, they never come again. Next, national resources. National resources are roads, canals, and railways. D is international resources. In international resources, we have the ocean resources. So, the option A is right answer. Come to the next question. Now, question number 8. Consider the following statements regarding power sharing arrangement in Belgium and identify the incorrect one from the following.
तो बेल्जियम जब में जो पावर शेयरिंग है उसके जैसे गवर्नमेंट वहाँ किस तरह से वर्किंग में है, 4 statements they have given and out of this one is incorrect. Equal number of members from Dutch and French community in the center government, this is right. Separate government for Brussels with equal representation of communities, this is also correct. But C, the state government to be subordinate to the center government, this is incorrect in context of Belgium power sharing. And D, community government elected by people belong to one language, this is also right. So the answer of question 8 is C. In question number 9, which of the following subjects come under the legislation of central and state government in India? Education, forest, banking and trade. इनमें से जो स्टेट और सेंटर दोनों के ही अंडर में आता है वो सब्जेक्ट हमारा एजुकेशन. Come to the 10th question. Which of the following statement is true regarding feminist movement? Feminist movement से related एक जो statement है out of these 4 statements that is correct is only C part. That feminist movement, radical women's movement aimed at equality in personal and family life as well. तो फेमिनिस्ट मूवमेंट का इनमें से जो एक एम था वो रेडिकल वीमेंस के लिए घर परिवार और सभी चीज़ों में इक्वलिटी की डिमांड थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? भारतीय जनता पार्टी इज अ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. सो दिस इज द correctly matched, others are wrong. Question number 12. Here are a few assertion and reason. You have to choose which one is correct and which one is wrong. राइट आंसर देखिए, एक स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड दूसरी स्टेटमेंट है. अगर पहले ठीक है और उसका रीज़न वही है तो वो बी आंसर है. अब ये ए बी सी और डी में से जो भी ठीक है उसको आपने राइट आंसर देना है. डेमोक्रेसी इज एन accountable, responsible and legitimate government. Yes, this is correct. Democracies have regular, free and fair elections and decision making is based on norms and procedures. So both are the condition which applied on democracy. So these both conditions, assertion and reason, both are right. So the right answer is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. In question number 13, they are asking which religion was protected and fostered by Sri Lankans in the constitution. श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बुद्धिज्म है उसी को प्रोटेक्टेड किया गया है और फोस्टर किया गया है. सो राइट आंसर इज सी, बुद्धिज्म. In question number 14, read the given data and find out children of which state has aimed maximum elementary school education. So you can see here they have given per capita income, infant mortality rate, literacy rate, net attendance ratio, and they have taken the data from Haryana, Kerala and Bihar. And in this question they are asking which state has attended maximum elementary school education. So you can see इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम केरला में है. लिटरेसी रेट 94%, सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो केरला में. जो नेट अटेंडेंस रेशो है 83%, दैट इज़ ऑल्सो इन केरला. सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज केरल और केरला. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. रीड द फॉलोइंग डाटा एंड सेलेक्ट द appropriate option from the following category: male and female educational achievement of rural population of उत्तर प्रदेश. यहाँ उत्तर प्रदेश की अलग अलग एज ग्रुप से कुछ परसेंटेज है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, लिटरेसी रिलेटेड है. हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल? राइट आंसर इज 18%, 81%, 61%, 69 and 18. 18% girls are not attending school.
फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक जो ग्रुप है वो रिलेटेड नहीं है। तो इंडियन रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन एंड मेट्रो, दिस इज द सेपरेट फ्रॉम दिस होल ग्रुप बिकॉज टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर एंड पोर्टर ये सर्विस सेक्टर है। टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर ये भी सर्विस सेक्टर है। पोस्टमैन, कोबलर, सोल्जर एंड अदर दिस इज ऑल्सो सर्विस सेक्टर। Indian Railway, Jet Airways, Doordarshan and Metro is the right answer. Now fill in the blanks. Sector, primary, secondary and tertiary, certified use or organized or unorganized. तो जैसे इन्होंने बताया प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पैसा कमाते हैं से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज तो ये किस में आएंगी हमारी, ये हैं ऑर्गेनाइज। प्राइमरी सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं होता, सेकेंडरी ऑर्गेनाइज होता है और टर्शरी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। तो इसमें राइट आंसर है हमारा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़। ये डिपेंड करता है कि आप किस काम में हैं और उसके बाद उसको कैटेगराइज किया जाता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो and select the correct option. Rohan has taken a loan of rupees 5 lakh from the bank to purchase a house on 12% rate of interest. He has to submit papers of new house and salary report to the bank. What is this process called as? देखिए कोई रोहन है जो 5 लाख रुपए का बैंक से लोन ले रहे हैं 12% रेट पे और उन्होंने नया घर खरीदने के लिए एक सैलरी रिकॉर्ड बैंक को दिखाया। तो ये पूछ रहा है हाँ क्वेश्चन में कि ये क्या प्रोसेस चल रहा है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ कोलेटरल प्रोसेस और कोलेटरल कंडीशंस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसीज अलाउ फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑन म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेडिंग चलती है वो इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो अलाउ करवाती है। तो इट्स राइट आंसर इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो राइट आंसर है वो बताना है हमें कि इनमें से क्या क्या कंडीशन है जो होती हैं ग्लोबलाइजेशन में। फर्स्ट स्टेटमेंट है रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट। कोई भी देश अपने कंट्री के ट्रेड से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, उनको हटा देती हैं। नंबर 2, फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप फैक्ट्रीज। अब जैसे इंडिया है, अगर इंडिया में हम अदर कंट्रीज़ को अलाउ करते हैं तो वो वहाँ से पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं नई फैक्ट्रीज़ के लिए, नए किसी ट्रेड को चलाने के लिए। तो इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट उन बैरियर्स को ख़त्म कर देगी और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उनको जो अलग अलग कंडीशन, टर्म और कंडीशंस हैं उनको भी फ्री किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो ग्लोबलाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर हमारा जो सेक्शन 1 है जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे पसंद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नई वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।